Hi students, you know very well that CLET dates are postponed and now basically they have used the word indefinite time, so we are not sure when the exam will be conducted. Basically we can expect in September. Uh, Basically minimum time can be September, it can extend furthermore. We are not sure about that. So now there are so many questions are generated by the students. What we can do now? If it would have been better if the exam would have been taken in May itself. Look, the things which are not in our hands, then we should not think about that. Due to epidemic, if the things are changed, if the circumstances are changed, then what we have to do? We have to do studies according to the schedule, according to the time period, according to the circumstances which are uncontrolled by us. Now you will say, what's in our control? In our control is to study. Basically I always say that whenever you prepare, you prepare with the timetable. If minimum, you can think that our expected time is 15th of September, assume. Till that time, daily work hard, maintain your timetable at least 8 hours. In that 8-hour time period, you have to schedule your mock test also. You have to study all 5 subjects. You have to rectify the mock test also. Basically I call it postmortem of the mock test also, because you just not only solve the mock test, you also rectify your things, rectify your mistakes, what mistakes you have done in that mock. And secondly, consistency is very very important. Look, you just make a particular schedule of all 7 days. There should be no exception in that. There should be no Saturday, no Sunday, no fun day, no. Just 7 to 8 hours or whatever, according to your timetable, according to your feasibility, you will study according to that only. Because consistency is a very very important thing. And the main part is that you just think in your mind, competition is same, competition is going to be very tough, because the students of the crash course only, if you are preparing for since 1 years 2 years, it will not matter at all. I repeat, it will not matter at all. What will matter? That even a student of non-medical who will start by today itself, like 5th of August itself, he or she can take good score. He or she can take good rank in NLU, and it can be possible that the student who are preparing for 2 years 1 years, they can go back. So basically, you know what, there is a time in race also. Start up, maintain the speed, after that boost up. So this is the time for you guys to boost up the things. If you will not boost, if you will just think that we don't know the dates, so when date will come, I will prepare. I tell you that in any war, the deciding factor is always your preparations. When war will go on, you will prepare or you will fight the war. मीन्स युद्ध आपकी तैयारियों का अंतिम चरण मात्र होता है. युद्ध के टाइम में आप तैयारी करोगे या फाइट करोगे, युद्ध करोगे.
तो आप अच्छी तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका युद्ध वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि आपकी प्रिपरेशन के बेस पे। सो तैयारी बहुत अच्छे से करो, बहुत ही अच्छे से अब तैयारी करना पड़ेगा, आपको बूस्ट करना पड़ेगा। तीसरा, मोटिवेट योर सेल्फ। अब मोटिवेशन का बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपने देखा होगा कि एक एक कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत आप बोरियत भी फील करते हो, बहुत चीज़ें फील कर रहे हो एज स्टूडेंट, आई अंडरस्टैंड। बट यू नो वो कहता है ना, फल, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करो अब आप, सब्र विद हार्ड वर्क। जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे आप इस रेस में बहुत ज़्यादा पिछड़ जाओगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपके पास टाइम है कम से कम 6 महीने का, 6 मंथ्स का करंट अफेयर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ने का, बहुत अच्छे से पढ़ने का, ठीक है। एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़ने का, अगर मैं लीगल रीजनिंग और जीके की बात करूँ तो इंग्लिश भी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आप न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से, मतलब बाइबल, आई विल से दैट दीज न्यूज़पेपर्स आर लाइक बाइबल फॉर यू। DI part you are practicing, and fifth part is your logical reasoning with critical reasoning also. So these things will come through practice only. These things are not like overnight, that you just there will be a spell of magic and all the things will recover. No, not at all, because the thing is that you have to, if some students are preparing well, then they are facing time constraints. You have 150 questions, 120 minutes. How will you do, sorry, how you will do that? That will come through practice only, practice only. And wherever you are studying, faith on your teacher, that that teacher's experience will definitely benefit you. Respect your faculties wherever you are studying, whatever you are doing, respect to teacher, because when you respect, then there is a sense of blessing comes out of the teacher. And teacher also want to teach throughout of the heart. Okay, so with this I just want tell you, last time strategy will be study at least 8 to 10 hours. Secondly, work on your lackness, कि मुझे इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, मुझे रीजनिंग में दिक्कत हो रही है, उनको सॉर्ट आउट करो। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो करो, कम से कम 1.5 से 2 घंटा न्यूज़पेपर्स को अच्छे से, तो बहुत अच्छे से, जर्नल्स को तो बहुत अच्छी गहराई से पढ़ोगे ना, तब आप क्वेश्चन आएंगे। बिकॉज अगर आप सिलेबस पे जाओगे, 450 वर्ड्स को पढ़ना, पूरी पेपर को सोल्व करना कहीं कहीं चैलेंजिंग होता है। उस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, कंसंट्रेटेड वे से करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, मैं ये 8 और 10 घंटे के नहीं बोलूँगा, मैं कहूँ जितना भी पढ़ो, टाइम टेबल होना चाहिए ऑब्वियसली, उस टाइम आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल हाई होना चाहिए। अब वैसे आप 15 घंटे बैठ जाओ, कंसंट्रेशन हाई नहीं है तो आपका मुश्किल हो जाता है। वो आप चीज़ों को, हो सकता है कि एक चीज़ आप 15 मिनट में बहुत अच्छे से कर लो, एक आपका माइंड अगर स्टेबल नहीं है तो आप उसको 3 घंटे में भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो विद दिस आपको मैं यही कह सकता हूँ, गॉड ब्लेस यू, होप फॉर द बेस्ट, एंड लीव द डेट्स। जब भी आएंगी कंपटीशन टफ होता जाएगा आपके लिए, सच्चाई बात तो ये, सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। और ये सोच लेना कि तुम जितनी मेहनत कर रहे हो ना, अगला बंदा तुम्हारे से डबल मेहनत कर रहा है, ये बस सोच के चल लेना। ये मत सोचना कि मैंने आज 8 घंटे पढ़ लिए, मैं 8 घंटा पढ़ रहा हूँ। हो सकता है कि अगला बंदा कोई 15 घंटे का भी मेहनत कर रहा हो, कोई बेंगलोर का क्या, कोई कोई टॉप रैंक के लिए जा रहा हो। आपका कंपटीशन 2 साल से बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी है, 1 साल से कर रहे हैं उनके साथ भी है, क्रैश कोर्स वालों के साथ भी है, टैलेंटेड बच्चों के साथ भी है, हार्डवर्कर बच्चों के साथ भी है, और ऐसे बच्चों के साथ भी है जो हार्डवर्कर और टैलेंटेड बहुत दोनों के दोनों है ना। तो जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज मैं 5 अगस्त की बात करूं तो आज सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है, उसमें भी आप देखो 4th अटेम्प्ट में बच्चों ने क्वालिफाई किया है। कैसे किया है, बोरियत तो उनको भी आती होगी, क्योंकि उनके एक माइंड में कंसेप्ट क्लियर था कि मुझे IAS सिविल सर्विस सर्वेंट के अलावा कुछ नहीं बनना। बैठे हैं,
एक ही चीज़ को दोबारा 10 बार पढ़ना, 15 बार पढ़ना, 20 बार, क्योंकि सिलेबस सेम था 4 साल से, तो उसको बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, कितनी बोरियत आती होगी देखो। बट दिमाग में ये था एक ही चीज़, जुनून, मुझे ये चीज़ करनी है बस, किसी भी कीमत पे करनी है। अब आज देखो, जितनी मेहनत तुम करोगे उतना ही फल अच्छा होगा, और जितना फल अच्छा होगा, जो अब आपकी जो ज़िंदगी है, अब आपकी उम्र कितनी है, 15, 16, 17, 18 साल, बची हुई ज़िंदगी, एक 22 आपकी BLLB मान लो हो जाएगी, 24 साल। तो एक ये सोच के देखो ना, 25 साल में मैक्सिमम आप जज या इतने बड़े वकील लॉयर बन चुके होंगे, उसके बाद की आपकी ज़िंदगी को एक बार विजुअल करके देखना, थोड़ा सोच के देखना है, पर आपको महसूस होगा, डिफरेंस आपको महसूस होगा आपको, कि मैं अगर इतनी मेहनत में मुझे क्या मिलेगा। दूसरी बात, घर वालों के काम, आज आप अब सब घर पे हो, प्लीज़ मैं ये कहूँगा भाई आप काम मत करो, बट आप ये भी करो कि थोड़ा बहुत काम करके हो सकता है कि आपका देखो माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है, किसी को बाहर जाना पड़ जाएगा, माइंड रिफ्रेश होता है, बहुत चीज़ें रिफ्रेश हो जाएंगी उससे। ये 24 घंटा तो आदमी इंसान पढ़ भी नहीं सकता। तो बेसिकली फोकस, फोकस शुड बी ऑन द स्टडीज़। आफ्टर ऑल मेहनत हम कर सकते हैं, और सारी चीज़ें भगवान के हाथ में है, एक्सटर्नल चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ हमारे, या देखो, या चीज़ों को बदलो, बदल नहीं सकते तो स्वीकार करो, बदल हम सकते नहीं है, स्वीकार करो, स्वीकार करके मेहनत करो, कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू।